मॉर्निंग सर, आ गए मैडम? जी, स्टार्ट करें सर. इट्स sharp 11. यस मैडम. Good morning to all of you, all girls. Few boys are also there from GNV Manpur. So today we all are here to get useful and valuable information on career opportunities in field You are of. not audible. Are you saying something? You're not audible. I'm not audible? Here you are audible, madam. अच्छा, एक मिनट सर. माइक तो ऑन है. पटेल सर. Yes, madam, audible. Audible. Audible? So today we all are here to get useful and valuable information on career opportunities in field of science. Sir, we have girls of Vigyan Jyoti team, not only from this year, that is for the session 2021, but also for last session and this session, current session also. So I again welcome all girls जो पुरानी जुड़ी हुई हैं और हमारी नई विज्ञान ज्योति फेज 2 की टीम की भी जुड़ी हुई हैं. वो ही उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है सर, लेकिन कुछ पुरानी गर्ल्स भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. सो आई वेलकम प्रिंसिपल सर जेएनवी इंदौर. आई वेलकम वाइस प्रिंसिपल मैम, शी इज ऑल्सो हियर from JNV Indore, and FCSA and all other staff members who are present in this meeting. It's my immense pleasure to introduce Dr. G.S. Patel, HOD Physics of Sikka Senior Secondary School, Indore. He is the resource person for science program of Akashvani and DD Indore. He was also the master resource person of Indore division of Vigyan Prasad and CST Delhi, and he is very active member of physics team of teachers in physics. So now I request Shri O.P. Sharma sir, Principal JNV Indore, to welcome our resource person, Dr. G.S. Patel. Sir. I want to request Shri O.P. Sharma sir, Principal JNV Indore, to welcome Dr. G.S. Patel for the program. Sir. Yes, respected Dr. G.S. Patel, our Vice Principal Madam Pushpa Singh, and our Coordinator Madam Srimati Anshu Singh, and all other officers, all other staff joined this program, and dear girls, girl student of Vigyan Jyoti. So, first of all, I welcome Dr. G.S. Patel, Head of the Department of Physics and Sikka Senior Secondary School, Indore. He is very experienced and very qualified. He is MSc in Physics and also PhD. Now, he will give you some tips regarding your career opportunities in the field of science. So I welcome sir, Dr. G.S. Patel. We are very happy to see you, and we hope that you will share your experiences also, and you will guide the students. What are the careers? What are the opportunities are with them, so that they can go ahead for their bright future. So welcome, sir. I welcome everybody, and I will not take much time. I will just say that the experience of Dr. G.S. Patel and his qualification itself is a source of inspiration for you. So welcome, sir. Over to Dr. G.S. Patel. Sir, please. I will not take much time because we have to listen to you also. Okay, sir. Welcome. Thank you very much, sir. For this program, Vigyan Jyoti, respected Mr. O.P. Sharma, Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Manpur, Srimati Pushpa Singh, Vice Principal, Srimati Anshu Singh, Coordinator of this Vigyan Jyoti program, my dear teachers and students. I am very much thankful for inviting me for this program and to guide the students. This career opportunity in the field of science
Basically, we'll talk about the science and some other fields, because science students can go in any field. This science is in the top. So science student can go in commerce and arts also. So later on I will tell some of the scope in that also. Just a minute, I will start it. This career opportunities in the field of science. As you are studying till 10th, you are not worried, you are not thinking what to do. But after 11th, in the 10th itself, you have to think what to do. 10वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि अब क्या करें. So it is better to decide the future career according to your interest. जो आप बनना चाहते हैं जीवन में, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना फ्यूचर सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें, तो आपके जीवन बहुत ही खुशी और अच्छे से सक्सेस प्राप्त होगी. तो यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूँ जिसमें साइंस में लोगों का इंटरेस्ट था और कैसे उन्होंने करा. जैसे सबसे पहले मैं डॉक्टर A.K. मित्र कोलकाता से थे. उन्होंने IIT में 3rd रैंक प्राप्त करी और he was interested in science. साइंस में वो इंटरेस्ट था. May I ask, is it visible to all of you or not? Just a minute, I have presented. Madam, is it visible? Yes, sir. The screen is visible or not? Just wait, sir. I have checked. Yeah. 1 minute. I'm sharing now. Sir. Up visible. Yes, sir. It's visible. तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ. Dr. A.K. Mitra, he was interested in science. So he has a 3rd rank in IIT JEE and he joined IIT Kharagpur. And after joining, one of the teacher has asked, why you have joined IIT? So he simply replied, sir, I am interested in science, but my college is not started. He was interested in science at Presidency College, Kolkata. So that time, the BSc course at Kolkata, the study was not started. So he joined IIT. And after 2 months, when college started at Kolkata, Presidency College, he had joined BSc after leaving the IIT. And he did PhD from MIT. And at present, he is a scientist at Bell Laboratory. So this was the interest in the science. Another example, you must have heard the name, Mr. Govind Lahoti. He was the IIT topper. He joined IIT Bombay, and after 1 year, he left the IIT and joined BSc at MIT, Massachusetts Institute of Science. And after doing BSc, he is doing research there. And one of our students doing B from IIT Mumbai. He is from Sikha school, and at present he is doing research in artificial intelligence at MIT, at Oxford University, London. At present he is at Oxford University, London. वहाँ से PhD कर रहा है वो artificial intelligence. This is the new subject. At present you must have heard the artificial intelligence. So these are some inspiration for other students, those who want to do good in science, those who want to become scientists. The scientists are not something different. Every day you are doing the research. Every day you are taking the decision. 10th के बाद हम 11th में क्या सब्जेक्ट लें, तो आप उस पर रिसर्च करते हैं कि ये लेंगे तो ये बनेंगे, ये लेंगे तो ये बनेंगे, इसमें ये करना पड़ेगा. तो यू आर द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट तो आप सभी हो. And you are studying in a very good school. Everyone is not getting this good chance.
So you must use it. So I will start with this science. Science in the top of the career in all engineering and science. जो बच्चों का टॉप क्लास जो प्रेफर करते हैं वो है रिसर्च, कि वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आप एक भी चीज रिसर्च करते हैं। अभी आपने पिछले महीने सुना होगा आईआईटी इंदौर ने कैंसर की दवाई बनाई है, और आईआईटी इंदौर ने एक और इंस्ट्रूमेंट बनाया है छोटा सा, जिससे ईसीजी कहीं भी गांव में भी जाके मोबाइल से कनेक्ट करके ईसीजी कर सकते हैं। तो ये सब जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, वो दिस इज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। वास्ट एप्लीकेशंस। और अभी डीआरडीओ में जो दवाई बनाई है, आपको मालूम है, कोरोना की D2G, तो ये सब सबके लिए है। पहली दवाई बनाई है कोरोना की। तो सबसे टॉप पे रिसर्च फील्ड है, जिसमें लोग रिसर्च करके आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि टॉप इंस्टीट्यूट्स में कैसे एडमिशन लें। तो दिस इज MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बच्चों की सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है। इसमें एडमिशन कैसे लें? तो इसके लिए कुछ एग्जाम्स हैं। अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग, ACT, ये एक एग्जाम पास करनी होती है, तभी इसमें एडमिशन मिलता है। फिर इसके अलावा SAT, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर TOEFL, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इन 3 एग्जाम में से कोई एक एग्जाम आपको पास करनी होती है, तभी इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। तो अपने यहाँ के जो बच्चे IIT से, जैसे गोविंद लाहौटी, IIT से गोविंद लाहौटी ने MIT ज्वाइन किया, तो उसको पहले पता नहीं था कि वहाँ कैसे एडमिशन हो। उसने IIT टॉप किया और IIT मुंबई में एडमिशन ले लिया। फिर उसने पता किया कि टॉप इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड के जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, तो ये सब उसने सर्च किया और फिर वहाँ रह के साल भर में ये एग्जाम उसने पास करी। इन 3 में से कोई एक एग्जाम पास करनी है ना। अब इन एग्जाम को पास करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप 12th में ही एग्जाम, 10th के बाद आप 11th में है, उस समय भी ये एग्जाम दे सकते हैं, और 12th में भी दे सकते हैं, 10th में भी दे सकते हैं। इसका जो स्कोर है वो एप्लीकेबल होता है। तो जब आप ये एग्जाम पास करेंगे तो विद इन 2 ईयर्स आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। उसका कुछ वैलिडिटी है कि आपने एग्जाम पास कर लिए, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, और आपके करियर में जो भी एग्जाम आप देंगे, चाहे बैंक की हो, रेलवे की हो, कोई सी भी हो, सब में आपको जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश, ये 3 चीज स्ट्रॉन्ग करना है। एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, 3 चीजें आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो सारे एग्जाम निकलते जाए। तो हमेशा आप जनरल नॉलेज के लिए आप न्यूज सुने डेली, उससे आपका जनरल नॉलेज अच्छा हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कुछ आजकल तो आपके कोर्स में भी सब MCQs डाल दिए हैं, और इसके अलावा कुछ बुक्स भी आती है अलग से, जिसमें एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, पिक्चर एप्टीट्यूड, ये सब आप तैयारी कर सकते हैं। तो दिस इज द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च। इसके बाद हम आते हैं कि इंडिया में कौन कौन से बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। तो इसके लिए कॉमन एग्जाम होती है JEST, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसके थ्रू ड्यूअल डिग्री कोर्स BS-MS, इसमें एडमिशन मिलता है। इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे लिखा है IISER भोपाल, इसके बारे में आपको बता दूं कि IISER भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करे हैं कुछ लिमिटेड जगह पे, जैसे भोपाल, पुणे, मोहाली, कोलकाता, बहरामपुर, तिरुपति, त्रिवेंद्रम। तो इस एग्जाम के थ्रू आप इन इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, तो इन इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या फैसिलिटीज है, एंड हाउ दे आर मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन, एंड हाउ दे आर गिविंग द एडमिशन। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको, 9th से 11th 12th तक के जो बच्चे हैं, 9th to 12th, उनके लिए ये साइंस समर स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी 2 साल से ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक। नॉर्मली ये मई के 2nd वीक में एक साइंस समर स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं IISER भोपाल, जो अपने पास में है, और इसके लिए फरवरी में एप्लीकेशन
जमा करनी होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता है। ऑल ओवर इंडिया 50 स्टूडेंट्स से सेलेक्ट करते हैं, उसमें गर्ल्स बॉयज भी रहते हैं, एंड दे आर गिविंग 5 days ट्रेनिंग कैंप, साइंस समर स्कूल कैंप फॉर 5 days एट भोपाल। वहां पर आपको 5 दिन में, एक दिन पूरा मैथमेटिक्स की चीजें रहेंगी, दूसरे दिन फिजिक्स की, तीसरे दिन केमिस्ट्री, चौथे दिन बायोलॉजी, और 5वें दिन सारे उसका क्विज और समरी, ये सारा। तो आप वहाँ 24 घंटे वहीं रहेंगे हॉस्टल्स में, और वहाँ के जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो सब आपको बताएंगे। तो 4 दिन में ऐसे 4 सब्जेक्ट, और 5वें दिन, तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप नेट पे IISER भोपाल चेक करेंगे, तो इसके लिए फरवरी के आसपास वो एप्लीकेशन कॉल करते हैं, और मई के सेकेंड वीक में 5 दिन का ये प्रोग्राम। फिर इसके अलावा एक विद्यार्थी विज्ञान मंथन एग्जाम, विद्यार्थी विज्ञान मंथन एग्जाम, जो कि विज्ञान भारती लगभग 6000 साइंटिस्ट का ग्रुप है, मैं भी उसका मेंबर हूँ, एंड आई वाज वाइस प्रेसिडेंट अर्लियर इन दैट विज्ञान भारती एंड लाइफ मेंबर ऑफ इट। तो विज्ञान भारती जो परीक्षा करवाती है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, उसमें जो टॉपर्स होते हैं, स्टेट टॉपर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स होते हैं, फिर नेशनल टॉपर्स होते हैं, उनको भी इन रिसर्च सेंटर पे विजिट कराते हैं, ताकि बच्चे वहां जाके देख सकें कि कैसे क्या वहां पर रिसर्च होती है। तो और इसके थ्रू जब आप इसमें एडमिशन लेंगे, है ना, इसके अलावा साइंस में इंटरेस्ट जगाने के लिए MPCST, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, वो भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, विद्यार्थी विज्ञान यात्रा, जो कि 8th, 9th, 10th, 11th 4 क्लासेस के लिए रहता है। उसमें भी ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है, और वो 1 वीक का फ्री विजिट कराते हैं एनी ऑफ द रिसर्च सेंटर इन इंडिया। कोई भी एक रिसर्च सेंटर में 1 हफ्ते की विजिट कराते हैं। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है कि साइंस में वहां पर साइंटिस्ट कैसे काम। अब इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं ये, तो ये this CHEST exam is a common exam for many institutes. These institutes are here. इसमें IIT की जो JEE मेन की रैंक है, उससे भी एडमिशन देते हैं। उससे अगर आपका नहीं होता है तो फिर 12th बोर्ड में 90+% होने पर इसके लिए अलग से फॉर्म भर सकते हैं, and they are conducting entrance exam and interview, and after that they are giving admission for 5-year degree course. This is a combined course, BS MS. दूसरा, इसमें जो BS आप वहां पर करेंगे तो you will get 80,000 per year scholarship. सारे बच्चे जो वहां एडमिशन लेते हैं सबको 80,000 प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप है पढ़ने के लिए। BS डिग्री 3 साल के लिए, और फिर MS डिग्री 2 साल के लिए 1.5 लाख रुपीस पर ईयर की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से है। तो आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च गवर्नमेंट ही दे देती है, इतने में आपका वहां पर सारा निकल आएगा, और फिर आप वहीं के वहीं साइंटिस्ट के लिए भी वहीं रिसर्च करके वहीं पर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सिक्का के एक बच्चे ने अभी एडमिशन लिया है 1 साल पहले बहरामपुर में, इसी एग्जाम के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है इसमें। तो IISER है जो कि भोपाल है, पूना है, मोहाली है, कोलकाता है, बहरामपुर है, तिरुपति है, त्रिवेंद्रम। फिर दूसरा इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, आयुका पुणे, ये एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स। So these are the institutes, those are involved in the CHEST exam. इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट है, all these are the top institutes for research. IPR, Indian Plasma Research, Ahmedabad, Plasma Research Laboratory, Ahmedabad, Indian Institute of Science, Bangalore, Bose Institute, Kolkata, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इंदौर, ये अपने इंदौर में ही रिसर्च सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। एंड स्कूल से बच्चों को वहाँ विजिट भी कराते हैं। हो सकता है आप में से किसी ने विजिट भी करा हो, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को वहाँ पर साइंस डे 28 फरवरी साइंस डे, उसमें विजिट करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या रिसर्च हो रही है। फिर IUCDAE इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भंवरकुआ इंदौर में है, ये भी रिसर्च सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, TIFR मुंबई। तो these are the institutes, those are giving admission by JEST exam। और यहाँ से आप एडमिशन लेने के बाद डुअल डिग्री करते हैं, BS और MS, और फिर वहीं से रिसर्च करके वहीं साइंटिस्ट बन जाता है। तो ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, अपने टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया के। फिर अपने यहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं। नेशनल यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन है, नेशनल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज की अलग अलग कैटेगरी है, UGC ने कैटेगराइज करा हुआ है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है ना। इसके पहले जो हमने बताया रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और फिर सेकेंड ईयर से आपके चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री। और फर्स्ट ईयर चारों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिर ये आपके नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, नेस्ट के थ्रू जो एडमिशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, जिसमें JNU दिल्ली है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, और MP की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी सागर। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इंडिपेंडेंस के टाइम की है, 1947 के आसपास, 1949 में शायद बनी है। तो ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और MP की सब बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एग्जाम होती है, उसके थ्रू ही एडमिशन मिलते हैं। मतलब आपका जैसे 12th का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का वेट नहीं करना है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म पहले से आ जाते हैं, तो आप पहले से फॉर्म भर दो, फिर जब रिजल्ट आएगा तो उनकी एग्जाम देने जाना है, और उसमें सिलेक्शन के बाद ही इसमें एडमिशन मिलते हैं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। तो ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन हो गए। फिर आते हैं अपन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, क्योंकि आजकल ये स्पेस साइंस बहुत ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट है स्पेस साइंस में। आपने मंगल मिशन पिक्चर देखी होगी कि कैसे सैटेलाइट्स को सेंड करते हैं, और उसमें क्या क्या बारीकियां दिखाई गई कि किस ऑर्बिट में भेजना है, पेरिजी में है, अपोजी में है, कहाँ से उसको फिर से लॉन्च करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, तो बच्चों का भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें अपने मेन इंस्टीट्यूट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसके 4 सेंटर भी है। अहमदाबाद में भी सेंटर है, हैदराबाद में है, इधर उड़ीसा में है, तो ऐसे 4 सेंटर्स भी है। और इसके जो एडमिशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। तो ये मेन इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा इसरो के जो 4 सेंटर हैं, वहाँ पर भी इसमें एस्ट्रोफिजिक्स में एडमिशन मिलती है। फिर इसका देहरादून में एक ऑब्जर्वेटरी है, तो आप कहीं से भी कोर्स करेंगे पूरे इंडिया में एस्ट्रो से रिलेटेड, और वहाँ देहरादून की जो ऑब्जर्वेटरी है, नैनीताल में है, वो देहरादून के पास नैनीताल में ऑब्जर्वेटरी है। वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 2 मंथ्स के लिए वहाँ पर बुलाते हैं, और पूरा नाइट में कैसे क्या देखना, कहाँ पर है, टेलीस्कोप से, वो पूरा बहुत बढ़िया वहाँ का प्रोग्राम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहता है। आफ्टर सिलेक्शन यू विल बी कॉल्ड देयर, उसके लिए अलग से अप्लाई करना रहता है। तो आप कहीं भी स्पेस साइंस से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, और नैनीताल में जो ऑब्जर्वेटरी है उसके लिए अप्लाई करेंगे तो 2 महीने का वो फ्री कोर्स के लिए वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ना। फिर आप ये सारे जो कोर्सेज करेंगे, इसमें स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप फॉरेन जाते हैं तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स है। तो आप जो हमने आपको एग्ज़ाम बताई स्टार्टिंग में, वो एग्ज़ाम पास करने के बाद गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो 100% स्कॉलरशिप भी हो जाती है ना। जब अभी एक इंदौर के बच्चे ने कुछ नॉवेल लिखा है इंग्लिश में, और उसको अमेरिका में पढ़ने के लिए बुलाया, तो गवर्नमेंट से उसकी 100% स्कॉलरशिप होगी पूरी पढ़ाई की। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो आप कभी ये ना सोचे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। आजकल पैसों की इतनी तकलीफ नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं किसी भी फील्ड में, तो ढेर सारे हाथ आपके
साथ आ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप उसमें रिक्वेस्ट डालेंगे कि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में सेलेक्ट हो गई हूँ या सेलेक्ट हो गया हूँ और मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तुरंत सपोर्ट मिल जाए। पहले भी मिलता था, पर आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जल्दी सपोर्ट मिल जाता है। फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम है, वो आपको सपोर्ट मिल जाएंगे। तो आप पैसे की चिंता नहीं करें, बस आप एग्जाम पास करें और अच्छे कोर्स में एडमिशन लें। फिर इसमें मैं ये नया फील्ड है स्टैटिस्टिक्स। आप देखते हैं कि अभी जैसे क्रिकेट मैच होता है तो कोई भी प्लेयर आता है, बैट्समैन आता है, बॉलर आता है, तो उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इसने कितने मैच खेले, इसने कितनी बॉल कहाँ डाली और कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा। इलेक्शन होता है, अभी इलेक्शन हुआ कुछ स्टेट्स में, तो इलेक्शन का पूरा कि इसमें बीजेपी कितनी सीट जीती थी, इस साल कितनी जीती थी, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। और कहीं भी आप देखेंगे कोई भी कंपनी है वो पूरा स्टैटिस्टिक्स स्टडी करती है कि कंपनी की ग्रोथ कब कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, वो पूरा। तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इज अ वेरी गुड जॉब। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इज ऑलमोस्ट इन एवरी कंपनी। गवर्नमेंट में भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं और दूसरी कंपनी में। और इसके लिए अलग से एग्जाम होती है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ISS। तो आफ्टर ग्रेजुएशन ISS एग्जाम पास करने के बाद आपको ऑफिसर ग्रेड में जॉब मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में। तो अपने जो केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी वहाँ पर अपने इसी डिपार्टमेंट में थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो ISS एग्जाम पास करने के बाद आपको बढ़िया गवर्नमेंट जॉब IAS लेवल का जॉब मिलता है। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उनमें कैसे एडमिशन होता है, तो ये है आपके ISI कोलकाता है, ISI न्यू दिल्ली, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स। तो इन इंस्टीट्यूट्स में अगर आप ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन करते हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आप नेट पे, आजकल सब चीज़ नेट पे मिल जाती है कि कब इनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं। जैसे ही आप 12th क्लास में पहुँचते हैं तो आप एक डायरी बनाएं और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट साइंस में है, स्टैटिस्टिक्स में है, मैथमेटिक्स में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसको नेट पे सर्च करें कि ये इंस्टीट्यूट की फॉर्म कब निकलते हैं, कब एडमिशन का प्रोसेस होता है। उसको एक डायरी में नोट कर लें कि ये जनवरी में ये वाला इंस्टीट्यूट का फॉर्म निकलेगा, दिसंबर में ये वाला इंस्टीट्यूट का फॉर्म निकलेगा। तो आप उस डायरी में देख के उस समय, क्योंकि आप ऐसे देख लेंगे तो भूल जाते हैं, डायरी में आप नोट कर लें कि इस जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आपने नेट पे एक बार सर्च कर लिया कि ISI कोलकाता का फॉर्म कब निकलेगा, तो उसको आपने नोट कर लिया दिसंबर, तो आप दिसंबर में उस पर सर्च करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे आप UPSC के एग्जाम कौन सी कब होती है, उसे डायरी में नोट कर लें, क्योंकि ये सब बीच बीच में होती है। और बच्चे क्या करते हैं कि जैसे दिसंबर में प्री बोर्ड हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, फिर JEE की एग्जाम हो रही है, तो भूल जाते हैं, फॉर्म भरना भूल जाते हैं। इसलिए आप जैसे 12th में जाएं तो जब गर्मियों की छुट्टियों में आप सर्च कर लें और उसको डायरी में नोट कर लें कि इधर के एग्जाम जनवरी में निकलेगा, ये वाला एग्जाम दिसंबर में निकलेगा, क्योंकि उस समय फिर आप बिजी हो जाते हैं, प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल्स है, वो सारी चीज़ें, तो वो आप उस समय भूल जाते हैं। फिर पेपर में तो ऐड आता ही है, पर फिर पेपर भी नहीं देख पाते बच्चे, पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। तो आप ऐसे डायरी में नोट करके रखें, उस समय सर्च करें। तो स्टैटिस्टिक्स, अभी आप 9th-10th में स्टैटिस्टिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और इसके बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं जो डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। इन एवरी कंपनीज देयर इज अ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, द गवर्नमेंट ऑफिसर ग्रेड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट इज देयर इक्विवेलेंट टू IAS। तो ISI चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहाँ से भी स्टैटिस्टिक्स है, फिर सारी यूनिवर्सिटीज में भी है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्टेड फील्ड है तो आप जितने टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करेंगे, आपकी लाइफ में उतना अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएगी। जैसे आप ISI न्यू दिल्ली से पढ़े, कोलकाता से पढ़े, तो सारे जो टॉप क्लास ऑफिसर्स हैं वो वहीं से निकलेंगे। स्टैटिस्टिक्स तो आपके शहर में भी मिल जाएगा। पाटिल सर रो रहे थे, मैडम रिपोर्ट गई नहीं। मैडम कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो फिर म्यूट कर लीजिए। तो ये सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन,
फिर अपन आते हैं इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें लोगों का ध्यान नहीं जाता है और बहुत ही अच्छे कोर्सेस हैं। सबसे पहले SCRA जो कि UPSC कंडक्ट करती है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। ये UPSC कंडक्ट करती है इस एग्ज़ाम को और ये रेलवे की एग्ज़ाम है। इससे 4 ईयर बी में एडमिशन मिलता है और इसमें एडमिशन लेने के बाद पूरा खर्चा, मतलब रहना खाना पढ़ाई, एवरीथिंग इज फ्री एंड गिवन बाय रेलवे। रेलवे की तरफ से आपकी पूरी पढ़ाई 4 साल का बी का कोर्स रेलवे की तरफ से पूरा फ्री रहता है। SCRA पास करने के बाद 12th के बाद ही ये सारे एडमिशन होते हैं। तो इसमें आप एडमिशन हो जाते हैं, 4 साल बी करते हैं रेलवे से और रेलवे में इंजीनियर की पोस्ट मिलती है। बहुत बढ़िया आपको सैलरी पैकेज, फिर कहीं भी इंडिया में आना जाना रेलवे से सब चीज़ फ्री होता है और ऑफिसर ग्रेड में जाते हैं तो पूरा AC टिकट आपका पूरा फ्री रहेगा, रहने के लिए मेडिकल सारी फैसिलिटीज सब फ्री रहती है और आपके पूरे परिवार के लिए सब चीज़ फ्री रहता है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम है SCRA। जनरली लोग IIT बस IIT ही सुनते हैं और उसी पे ध्यान फोकस करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी एग्जाम्स हैं। तो ये SCRA बहुत बढ़िया एग्जाम है, इसकी आप तैयारी करें। बस इसमें नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा कम होती है, ऑल इंडिया लेवल पर है और वो एक बैच ही लेते हैं। 40 या 60 स्टूडेंट्स का एक बैच बनाते हैं। तो उसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपकी पूरी पढ़ाई फ्री और आप ऑफिसर ग्रेड में रेलवे में सेलेक्ट हो जाएंगे। सीनियर होने के बाद आप DRM वगैरह, आपने नाम सुना होगा, रेलवे में DRM होते हैं, डिविजनल रेल मैनेजर, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी फैसिलिटीज। फिर जो दूसरी ये डिग्रियां है, BE है, BTech है, BArch है, आर्किटेक्चर, तो इनमें IIT, BITSET, IIITs ये सारे से आप ये डिग्री कर सकते हैं, जिसके लिए जॉइंट एग्जाम होते हैं, IIT JEE मेन एंड एडवांस। तो आजकल तो कई बार होने लगी है IIT, 3 बार 4 बार भी करने लगे IIT मेंस। तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी जा सकते हैं। और ये SCRA थोड़ा सा अलग एग्जाम है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। SCRA हमने तो सुना ही नहीं, बोलते हैं, और बहुत बढ़िया है। आप एक बार इसमें सेलेक्ट हो गए, आपकी पूरी पढ़ाई सब चीज़ फ्री है रेलवे की तरफ से, रेलवे में ही पोस्टिंग है, बढ़िया ऑफिसर ग्रेड। फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये भी एक नई ब्रांच है जो कि जिस पे बहुत फोकस कर रहे हैं लोग। इसमें JEE के थ्रू एडमिशन होगा और IIT और BITS पिलानी, BITS के भी 4-5 सेंटर हो गए आजकल, पिलानी है, दुबई है, गोवा है, रांची है, तो इनमें एडमिशन आपको इसमें मिल जाएगा। फिर फायर इंजीनियरिंग, बहुत बढ़िया ब्रांच है फायर इंजीनियरिंग। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, वहाँ पर एडमिशन मिलता है, ये भी JEE के थ्रू होगा। फिर एक और यहाँ पर ब्रांच है प्लास्टिक इंजीनियरिंग। आजकल जैसे आप देखते हैं हर चीज़ प्लास्टिक का है, लैपटॉप, मोबाइल, बॉटल्स, चेयर्स, एवरीथिंग, सब चीज़ तो प्लास्टिक का बनता है। तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड ब्रांच। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से प्लास्टिक इंजीनियरिंग आप 4 साल का कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ब्रांच है। फिर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल आजकल फिजिक्स का यूज तो हर जगह है। आपको ब्लड शुगर निकालना है, BP चेक करना है, एक्सरे करना, CT स्कैन, all medical instruments, they are related with the physics. So physics and bio, that branch is biomedical engineering, and there is a huge demand in the country at present। डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है। फिर all these apparatus जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनको हैंडल करने के लिए तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जरूरत है। अभी हमारे एक स्टूडेंट्स ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जस्ट कंप्लीट करी और उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया जबलपुर में, तो तुरंत जॉब लग जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाए। फिर है केमिकल इंजीनियरिंग, और ये नया ब्रांच है कॉग्निटिव साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अभी सब जगह देखते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स,
So all these are related with the artificial intelligence. That is the cognitive science. और इसका जो कोर्स है IIIT बेंगलोर में है, कॉग्निटिव साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये सारे जो कोर्सेस हैं ये IIT JEE मेन एडवांस के थ्रू एडमिशन, और उनकी तैयारी आपको कैसे करना है. कुछ बच्चे सोचते हैं कि केवल कोचिंग जाने से ही होगा, तो ऐसा नहीं है. आप 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लास की NCERT बुक, NCERT एग्जाम्पलर बुक, ये 2 किताब अच्छे से कर लें तो एक फर्स्ट अटेम्प्ट पे सेलेक्ट हो जाएंगे. और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें. आप एक भी कोई कोचिंग नहीं जाएंगे, केवल NCERT और NCERT एग्जाम्पलर बुक 9th, 10th, 11th, 12th की पूरी एक तरफ से कर लेते हैं, अच्छे से आपको आती है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे IIT सेलेक्ट हो जाएंगे. आपको कहीं भी कोचिंग जाने की, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. इसके साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें. जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसकी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना जरूरी है. उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इस एग्जाम को पास कर सकते हैं. तो ये कुछ कोर्सेस हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. अब हम आते हैं बायोलॉजिकल साइंस पर. तो बायोलॉजिकल साइंस में MBBS डिग्री है, BDS डिग्री है. तो इसमें जो एडमिशन है, अभी तो बहुत डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में. अभी सब ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो डॉक्टर्स की बहुत कमी है. और ये तो सेवा है, तो सेवा का आपको मौका मिलेगा. अगर आप डॉक्टर्स बनते हैं तो कितने लोगों को आप जीवन दान देंगे. तो बहुत अच्छा फील्ड है. अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं. इसके लिए जो एग्जाम्स है, नीट के एग्जाम है. आजकल नीट कॉमन एग्जाम कर दिया है और नीट के थ्रू एम्स में एडमिशन होते हैं. एम्स भी अभी बहुत सारे हो गए, केवल पहले दिल्ली कुछ जगह था, अभी तो काफी भोपाल में भी है, रांची में भी है. बहुत सारे एम्स सेंटर खोल दिए, जोधपुर में भी है. फिर AFMC है जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज है, वहाँ पर MBBS की डिग्री होती है. फिर BHU में भी है. फिर JIPMER, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, JIPMER चंडीगढ़ में. तो यहाँ पर ये सारे एडमिशन आजकल नीट के थ्रू होते हैं. ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस दे आर गिविंग एडमिशन इन MBBS BDS थ्रू नीट. इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स है. अगर आप MBBS में नहीं जाना चाहते तो उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं. B फार्मा है, T फार्मा है. फिर इसके अलावा आयुष आयुर्वेदिक का है. फिर होम्योपैथिक है, BHMS. देन BAMS है, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी. फिर बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी. ये सारे कोर्सेस हैं. तो इसमें ज़्यादातर कोर्सेस में एडमिशन नीट के थ्रू है. और फिर एक कॉमन एग्जाम ले लेते हैं आयुष, तो उसके थ्रू भी एडमिशन देते हैं. और B फार्मा अगर आप करते हैं तो B फार्मा D फार्मा करके PhD करके आप मेडिकल उसमें दवाइयों की फैक्ट्री में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, नई दवाइयाँ बना सकते हैं. और जो अपने ये वैक्सीन बन रहे हैं, ये इसमें आप वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं. और इसके अलावा B फार्मा के बाद आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं. कंपनीज के अलावा इसमें भी जा सकते हैं. फिर इसमें BSc कोर्सेज भी हैं मेडिकल में. फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, वेटरनरी है, एग्रीकल्चर है. तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इंदौर में भी है, जबलपुर में भी है BSc एग्रीकल्चर. फिर वेटरनरी का अपना महू में कॉलेज है. BSc नर्सिंग प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं. फिजियोथेरापिस्ट, ये भी BSc फिजियोथेरापिस्ट है. बायोटेक्नोलॉजी है. फिर इसके अलावा हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी भी एक पोस्ट होती है. हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसका भी एक कोर्स है, तो वो भी आप कर सकते हैं. फिर हॉस्पिटल में जितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए भी कोर्स होते हैं. रेडियोलॉजिस्ट होते हैं. फिर जैसे एक्सरे करना है, तो इन सब के लिए भी MBBS के बाद स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, या फिर
डिग्री कोर्सेज भी हैं, वो भी करके हॉस्पिटल में बढ़िया जॉब आप मिल सकते हैं। फिर आते हैं अपन इंडियन नेवी। तो इसमें जो हमने यहाँ पर कोर्सेज लिखे हैं, जैसा कि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हम पहले जॉब कर लें और जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं, तो ये भी एक अच्छी सोच है कि कोई बच्चा 12th के बाद या 10th के बाद जॉब करने लगा और साथ में उसने ओपन स्कूल से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर ली, तो 5-6 साल बाद उसकी सीनियरिटी भी हो जाएगी, उसका पैसा भी कमा लेगा और उसकी डिग्री भी पैरेलल में चलती रहेगी। और कोई दूसरा बच्चा 5-6 साल पढ़ाई करके फिर जॉब ढूंढने जाता है, तो दोनों में जो 5-6 साल से जॉब कर रहा है वो सीनियर भी हो गया, पैसे भी कमा लिया और डिग्री भी हो गई उसकी, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो आफ्टर 12th भी कुछ जॉब्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे आफ्टर 12th आप पहले हमने बताया आपको डिग्री कोर्सेज का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ आप एडमिशन लेते हैं। जैसे इंदौर का RR कैट है, वहाँ BARC मुंबई है, होमी भाभा सेंटर मुंबई है, वहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 4 साल की डिग्री कोर्स के साथ वो वहाँ पर आप रिसर्च भी करते जाते हैं। फिर आपका जो मास्टर डिग्री कोर्स है या आप जॉब में सेलेक्ट हो गए, RR कैट में आफ्टर 12th भी वो सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों, कुछ उनकी पोस्ट निकलती है जिसमें वो इंटरव्यू लेते हैं और आफ्टर 12th सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आफ्टर 12th वहाँ पर आप एज ए जूनियर साइंटिस्ट या रिसर्च ज्वाइन हो गए, तो आपके डिग्री कोर्स वो खुद करवाएंगे और उसके लिए आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, आपको वहीं पढ़ाई करना पड़ेगा, केवल एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाना। और फिर मास्टर डिग्री, तो यहाँ पर इंदौर यूनिवर्सिटी में MSc बाय रिसर्च करके एक कोर्स है, वो उन बच्चों के लिए है जो RR कैट में जॉब कर रहे हैं। आफ्टर 12th ही लग गए थे, वहीं से ग्रेजुएशन करवा दिया उन्होंने और आफ्टर ग्रेजुएशन वहां से RR कैट से अपना वो रिसर्च भी कर रहे हैं और साथ में MSc बाय रिसर्च वहीं पर पढ़ाई करके केवल एग्जाम देने आते हैं और यहाँ DAVV इंदौर से उनको डिग्री मिल जाती है MSc बाय रिसर्च, तो जॉब के साथ डिग्री मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया है कि आप इतने साल 5-6 साल जॉब कर लिए, 5-6 साल में आपने कमा भी लिया और साथ में डिग्री भी हो गई, क्योंकि आप पहले पढ़ाई करते रहेंगे फिर जॉब ढूंढेंगे, एक ये तरीका। या आपने पहले जॉब कर लिया, जॉब के साथ पढ़ाई भी हो गई और अच्छे इंस्टीट्यूट से हो गई, आप रिसर्च हो गए, फिर आप वहीं के वहीं साइंटिस्ट हो गए, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका। तो इसी तरह से इंडियन नेवी में ये कुछ पोस्ट है जो आप 12th के बाद ही जा सकते हैं। तो ये है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के, तो ये आफ्टर 12th इसमें एडमिशन होते हैं। 12th में 60% होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स ये कंपलसरी है, केमिस्ट्री, बायो या CS इसमें से कोई एक सब्जेक्ट। तो आफ्टर 12th इसमें फॉर्म भर के इसमें सिलेक्शन हो जाता है और इसमें फिर जब आप वहाँ ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग कोर्स है 3 साल का, उसी में आपको वो डिग्री करवा देंगे और डिग्री करने के बाद आप पोस्ट डिग्री भी कर लो, PG पोस्ट ग्रेजुएट, और जॉब भी होते जाएगा और आपकी डिग्री भी होते जाएगी, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी हो गया, डिग्री भी हो गया। फिर एक दूसरा ये SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, तो इसमें 10+2, इसमें भी फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री बायो CS इसमें से कोई एक सब्जेक्ट। तो इसमें ये परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, 60 से कम वालों को भी एडमिशन मिलता है। तो इसमें गर्ल्स भी जा सकते हैं, बॉयज भी जा सकते हैं इंडियन नेवी, तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। तो सबका अलग अलग सोचना है। आप आफ्टर 12th अगर जॉब में लग जाते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं तो भी बहुत बढ़िया, या आप पढ़ाई करते हैं फिर बाद में जॉब ढूंढते हैं, तो दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें भी कोई नुकसान नहीं है कि आप जॉब कर लो फिर पढ़ाई करो। फिर एक और कोर्स है ये NDA, पर ये केवल बॉयज के लिए रहता है, फिर भी यहाँ पर हम बता दें, हो सकता है फ्यूचर में गर्ल्स के लिए ओपन हो, अभी तो नहीं है। तो NDA एग्जाम होती है ट्वाइस अ ईयर, 6-6 महीने में एग्जाम होती है और इसमें PCM के एग्जाम लेते हैं और इसमें एडमिशन होने के बाद आपको वहाँ पर ऑफिसर ग्रेड की ट्रेनिंग होती है। देहरादून और पुणे इंस्टीट्यूट है IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ पर एडमिशन मिलते हैं। तो हमारे एक मित्र है वहाँ पर प्रोफेसर है IMA देहरादून। तो अभी ये ओनली फॉर बॉयज है, तो हो सकता है फ्यूचर में गर्ल्स के लिए भी ये ओपन हो जाए। तो ये कुछ कोर्सेस हैं और इसका हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर लें कि
आफ्टर 12th आपको क्या क्या कोर्सेस है, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो बीटेक के ये ढेर सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पर जो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ये ढेर सारी ब्रांचेस हैं, ये सारे बायोमेडिकल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, मरीन, माइनिंग, सिल्क, टेक्सटाइल, ऑल दीज आर द ब्रांचेस इन बी। फिर मेडिकल में हमने ये डिस्कस कर लिया है, आपका 5 इयर्स के कोर्स है, नीट के थ्रू ये सारे एडमिशन होते हैं, एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, न्यूरोपैथिक, एग्रीकल्चर, डेंटल, वेटरनरी, फिजियोथेरेपी। फिर ये बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएससी एनेस्थीसिया, दीज आर द वेरियस ब्रांचेस। इसमें भी आप बीएससी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होगा तो उसमें बेहोश करना रहता है, तो उसके लिए फिर ये वाले जो कोर्स है बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इनको ही बुलाते हैं। ये ऑपरेशन के पहले इनको ही बुलाते हैं, और ये उसमें कितना 10 मिनट बेहोश करना है, 20 मिनट करना है, ये सब डिसाइड करके उस हिसाब से वो देते हैं ट्रीटमेंट। फिर कार्डियक टेक्नोलॉजी है, आपका हार्ट से रिलेटेड ईसीजी, ये सारी चीज के लिए बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आपके कैंसर ट्रीटमेंट में जो होते हैं रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी जिसे कहते हैं। फिर है क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन भी ये उसी से रिलेटेड है, कीमोथेरेपी से। फिर ऑपरेशन थिएटर, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर, बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंट, बीएससी इन रेस्पिरेटरी केयर, तो ये सारे लैब टेक्नोलॉजी, ये सारे इसमें। फिर पैरामेडिकल में ये डायलिसिस टेक्नीशियन, जो किडनी खराब हो जाती है तो उसमें फिर डायलिसिस होती है, तो डायलिसिस टेक्नीशियन इसका कोर्स है। फिर ईसीजी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, ये सारे मेडिकल से रिलेटेड ये सारे कोर्सेस। तो इनमें से आप कोई सा भी कोर्स आपका मेडिकल में इंटरेस्ट है तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। फिर 3 ईयर डिग्री कोर्सेस है, ये अभी अपन बात करेंगे। फिर टीचिंग में भी काफी कुछ कोर्सेस हैं, तो टीचिंग में जाएंगे तो डीएड है 2 इयर्स का। फिर ये एंट्रेंस एग्जाम होती है पीईटी टीचर्स के लिए। फिर ये छोटे बच्चों के लिए मॉन्टेसरी टीचर्स के लिए एग्जाम है। फिर ये आर्मी, नेवी हमने आपको बताई दिया, एयरफोर्स वाले। फिर इसके अलावा कुछ कोर्सेस हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज। तो जैसे आपने जर्मन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लिया, रशियन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर लिया, चाइनीज है, जापानीज है, कोई सा भी एक लैंग्वेज अलग से आपने कर ली। तो अपने जो कंट्रीज के बीच में जो राजदूत होते हैं, वहाँ एक मीडिएटर काम करते हैं जो दोनों लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में भाषा का कन्वर्ट करते हैं। वो बहुत बढ़िया जॉब इसमें मिलता है एज ए फॉरेन लैंग्वेज अगर आप कुछ कर लेते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज हैदराबाद में, देयर इज अ इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद, तो वहाँ से ये डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। तो अपनी डिग्री के साथ ही एक्स्ट्रा में भी कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज, और फॉरेन लैंग्वेज करके आप बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। फिर फायर सेफ्टी है, तो फायर सेफ्टी में इंजीनियरिंग भी है, डिप्लोमा भी है। जर्नलिज्म में डिप्लोमा कोर्सेस हैं। होम साइंस, टूरिज्म, ये होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म, ये सब इसमें आ गया। फिर रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट में पोस्ट है इसकी। डिजाइनिंग भी आजकल खूब चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ज्वेलरी, फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ये सारे कोर्सेज हैं, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन राइटिंग, साउंड डिजाइन, एडिटिंग, एक्शन। फिर मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, होटल। तो दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ द वेरियस कोर्सेज आफ्टर 12th। फिर यहाँ पर जो ये 3 इयर्स कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज और अपन डिस्कस करते हैं। These 3 year डिग्री कोर्सेस जो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे ये कोर्सेस करते हैं, तो साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपने 12th तक साइंस से पढ़ा है तो आप कॉलेज में कॉमर्स में भी जा सकते हो, आर्ट्स में भी जा सकते हो और साइंस में भी जा सकते हो। तो ये 3 year डिग्री कोर्सेस हैं। तो बीए है ना, ये इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बीए। तो एज ए वन सब्जेक्ट आप भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स। तो वन मेजर सब्जेक्ट हो जाता है, अदरवाइज इट इज विद द 3 सब्जेक्ट्स। तो बीएससी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं,
मैथ्स, जूलॉजी, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर, होम साइंस, बायोकेमिस्ट्री। और जो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज से भी एमएससी डिग्री होती है, एमएससी अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी और फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो भी बहुत बढ़िया कोर्स है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे कुछ लोग आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आप बीएससी कर लो पहले और फिर एमएससी करने के लिए आईआईटी चले जाओ, एमएससी अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री में वहां से कर लो। तो ऐसे भी आप कोर्स कर सकते हैं और एमएससी के बाद भी आप एमटेक के लिए आईआईटीज में जा सकते हैं, क्योंकि आप जितने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करेंगे फ्यूचर में आपको उतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये बीएससी के बहुत सारे 3 ईयर डिग्री कोर्स हैं। फिर बीकॉम कॉमर्स के कोर्सेस हैं, ये भी बीएससी के रिलेटेड कोर्स हैं। डेयरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है। इसके अलावा कुछ अदर डिग्री है, एलएलबी। तो आफ्टर 12th क्लैट एग्जाम होती है, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको पास करने के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वहाँ एडमिशन मिलता है और वहाँ से अगर आप लॉ करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया जॉब मिलेगा। हमारे एक स्टूडेंट ने क्लैट में इंदौर टॉपर थी, फिर उसने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट बेंगलोर से एलएलबी करी और उसको बहुत बढ़िया 25 लाख का पैकेज मिला मुंबई में जॉब करने। तो आप ये भी एक लॉ वाला भी बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें साइंस वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले भी, सारे बच्चे जा सकते हैं। तो क्लैट की एग्जाम होती है, क्लैट की एग्जाम निकालने के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कुछ 7-8 जगह है पूरे इंडिया में, वहाँ एडमिशन मिलता है और बहुत अच्छा जॉब मिलता है। और फिर इसके अलावा ये बीबीए कोर्सेस हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड फिनेंस, बैचलर इन फिनेंस मैनेजमेंट, देन बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। ये सारे कोर्सेस हैं, 3 ईयर डिग्री कोर्सेस है, एलएलबी है और ये कोर्सेस। तो ये एलएलबी भी आप क्लैट के थ्रू जाएंगे तो टॉप इंस्टीट्यूट मिलेगा और बहुत बढ़िया जॉब मिलेगा। और दूसरे भी एलएलबी के केवल कोर्स कर लेने से आपको जॉब मिल जाएगा ऐसा जरूर नहीं है, फिर वो आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा कि आप कितना इंटेलिजेंट है, कितने इंटेलिजेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जॉब मिलेगा। और अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट से करेंगे, जैसे अगर आप बीकॉम करते हैं श्री राम कॉलेज दिल्ली से, तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। बीकॉम होने के बाद 20 लाख के ऊपर का पैकेज मिलेगा। और आप दूसरे किसी छोटे कॉलेज से बीकॉम करेंगे तो फिर आपको जॉब ढूंढना में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप जितने बड़े इंस्टीट्यूट से करेंगे पढ़ाई, आपको उतना अच्छा रहेगा। और पढ़ाई में पैसों की चिंता नहीं करना, आप सिलेक्शन हो जाए तो बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज के लिए भी है, मेधावी स्कीम। आपने नाम सुना होगा, मेधावी स्कीम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह स्कीम निकाली है और अपने मध्य प्रदेश के जो भी बच्चे अगर एमपी बोर्ड के हैं तो 75% के ऊपर लाना है मिनिमम, और सीबीएसई बोर्ड के हैं तो 85% के ऊपर लाना है मिनिमम। हमारा एक भतीजा है, उसने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है यहाँ पर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर लगभग 60 लाख रुपए फीस है पूरा एमबीबीएस की। लेकिन उसका जो परसेंट था 88% था और उसके पिताजी किसान है, तो इतना पैसा तो दे नहीं सकते, तो उसका सिलेक्शन मेधावी स्कीम में हो गया है। तो 11 लाख रुपए हर साल के एमपी गवर्नमेंट से उसकी फीस भरती है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। और हॉस्टल का जो खर्च है लगभग 1 लाख रुपए, वो हम लोग भरते हैं। तो आप पैसों की चिंता मत करो, आप एग्जाम पास करो, बहुत हेल्प है, गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है। लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत सारी स्कीम है, अपने शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम लड़कियों के लिए भी निकाली है। तो फिर ये कुछ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है 4 इयर्स का, ये अभी सब नई स्कीम में है, यूजीसी ने दिया है। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीए एलएलबी, ये कंबाइंड कोर्स है 4 इयर्स का, 4 ईयर 5 ईयर के कंबाइंड कोर्स है। बीबीएम एलएलबी, तो ये 2 कोर्स एक साथ चलते हैं, तो इसमें 1 साल कम हो जाता है। अगर आप अलग से बीएससी करेंगे और फिर बीएड करेंगे तो 3 साल का बीएससी, 2 साल का बीएड। लेकिन ये इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 4 साल में दोनों कोर्स हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया कोर्स।
फिर इसमें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, ICWA, CS, CA, ये कॉमर्स वालों के लिए, CPT, ATC, IPCC, ITT, ये सारे कॉमर्स वालों के लिए। तो ये सारे कोर्सेस हैं आफ्टर 12th। तो जो हमें लगा कि ये सब आपको बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, फिर आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप डिसाइड करें उसमें मेन आपका इंटरेस्ट ध्यान रखें। हमारा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है इसलिए लेना है, ऐसा ना रखें। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप अपने फ्यूचर में उसमें अच्छा कर सकते हैं, उसी में। और आजकल सब चीज का गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, बाहर के भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है जो बच्चे अच्छा करते हैं। बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, आप अच्छे से तैयारी करो, सेलेक्ट हो गए, कॉन्फिडेंस रखें, है ना। ऑल द बेस्ट। तो ये जो हमारे दिमाग में आई चीजें वो हमने आपको बताई। इस पे आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस मैडम, जो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ बच्चों, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। सर कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाले हैं बच्चों ने। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ। जी। व्हाट इज द मिनिमम कट ऑफ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एवरी ईयर? देखो, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये योगेंद्र सिंह का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम कट ऑफ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले परसेंटेज बेस पे जो एडमिशन होते थे, तो एक बार क्या हुआ था, उन्होंने 100% पे क्लोज कर दी थी लिस्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई बच्चों ने, तो उन्होंने कहा कि आप 100% में क्लोज नहीं कर सकते, तो 1% कम से कम डाउन करना पड़ेगा। तो 99% उन्होंने डाउन किया था। पर अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके एडमिशन कॉमन एग्जाम के थ्रू है, जो हमने बताया NAEST, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, उसके थ्रू एडमिशन है। तो कट ऑफ का जो डायरेक्ट उस पर लेते हैं तो फिर उसमें काफी हाई जाता है। जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है उसमें 99-98% पे क्लोज हो जाती हैं चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अगर परसेंटेज बेस पे एडमिशन लेते हैं। और एग्जाम के बेस पे लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाउ कैन गेट एडमिशन देयर? सीरियल से देख लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले परसेंटेज बेस पे होता था, आजकल कॉमन एग्जाम है। तो उस कॉमन एग्जाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी जो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो कॉमन एग्जाम से एडमिशन देते हैं। और उसका फॉर्म लगभग दिसंबर-जनवरी में निकलता है, आप उसको पहले से भर दें, फिर रिजल्ट आने के बाद एग्जाम होती है और फिर एडमिशन होती है। फिर ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है। योगेंद्र के बाद है ऋषभ जैन, फॉर विच कैटेगरी आर यू ऑप्टिंग? ऋषभ जैन क्या पूछना चाहते हैं? फॉर विच कैटेगरी आर यू ऑप्टिंग? आफ्टर MBBS हाउ डू वी गेट अ जॉब? ये सगुन चौबे, वेरी गुड क्वेश्चन। तो MBBS के बाद जब आप अगर आप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम में एडमिशन लेते हैं, जैसे मेधावी स्कीम, तो एक बॉन्ड भराया जाता है, वो 25 लाख रुपए का बॉन्ड होता है कि आपका MBBS होने के बाद आपको कम से कम 2 साल गवर्नमेंट की सर्विस करनी है। तो आपका जैसे MBBS होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और 2 साल उनके उसमें जॉब करना है। और उस समय भी लगभग आपको 80,000 पर मंथ की पेमेंट मिलेगी। वो आपका गवर्नमेंट जॉब लग ही जाता है। MBBS करने के बाद जो कंपल्सन दिया है MP गवर्नमेंट ने कि 2 साल जॉब करना, वो आपका जॉब वहीं से लग जाता है मिनिमम। फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। और फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग से अप्लाई करके जा सकते हैं, पर 2 साल गवर्नमेंट में करना कंपल्सरी। फिर कुणाल मालाकार, SCRA का एग्जाम कैसे कब देना होता है? SCRA का एग्जाम आप UPSC सर्च करेंगे तो उसमें पूरा कैलेंडर आ जाता है कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा।
और इसके एग्जाम में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे जेई की होता है वही सेम पैटर्न में एग्जाम होता है और इसकी एग्जाम लगभग जुलाई में होती है। फॉर्म पहले भरना पड़ता है, एग्जाम जुलाई में होती है। सिलेबस पूरा 12th तक का ही सिलेबस है जो जेई का सिलेबस है सेम। फिर कैन वी कंटिन्यू आवर टीचिंग कोर्स विद एमबीबीएस? टीचिंग कोर्स नहीं, एमबीबीएस के साथ आपको दूसरा कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। एमबीबीएस तो बहुत बढ़िया, उसी में पूरा डिग्री हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहे हैं? व्हाट अबाउट नीट पीजी? सगुन चौबे। तो नीट यूजी मतलब आपका एमबीबीएस है, मास्टर ऑफ बैचलर इन सर्जरी एंड मेडिसिन, और फिर उसमें जो पीजी कोर्स है जैसे आपने सुना होगा स्पेशलिस्ट, कान के स्पेशलिस्ट है तो वो एमडी, मास्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमडी का एमडी जो है वो पीजी है। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन। तो एमबीबीएस यूजी कोर्स है और पीजी में एमडी। तो एमडी पर्टिकुलर जैसे ब्रेन से रिलेटेड है, हार्ट का है, गायनेक का है, मेडिसिन का है, तो उसमें होती है। पीजी उसका है। फिर क्या पूछना चाह रहे हैं? How do our NEET in private college do we get the job? देखो एमबीबीएस आप जहां से भी करेंगे, गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, एमपी में करोगे तो एमपी गवर्नमेंट का एक बॉन्ड बनना कंपलसरी है, 2 साल आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आपका जॉब पक्का ही है। प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करो, वो तो रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज देते हैं। कितने लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट किया है, फिर रैंकिंग के हिसाब से जो इसमें 530 मार्क्स के ऊपर वाले हैं लगभग उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, फिर उनके नीचे वालों को प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो दोनों की डिग्री एक जैसी है, दोनों की पढ़ाई एक जैसी है, दोनों को कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट में 2 साल जॉब करना कंपलसरी है। Sir, in Delhi University, they give admission on the basis of our class 12th result, or do they have their own exam or something? At present, there is a common exam for all central universities. तो जो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एडमिशन आपको उस एग्जाम से होंगे। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 12th रिजल्ट आने के बाद फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वो परसेंटेज से देते हैं। तो ज्यादातर एडमिशन 95% के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, ऐसा है। तो आप 95% के ऊपर लाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि दिल्ली सब लोगों की चॉइस रहती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो 95 प्लस वहाँ पे वो क्लोज हो जाती है ज्यादातर एडमिशन, ऐसा है। बच्चे से बात हो जाएगी। Okay, sir. फिर ये अपेक्षा पटेल, फ्रॉम विच क्लास वी हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ नीट? देखो आप 11th से कर सकते हैं, 9 से कर दे तो अच्छी बात है, पर आप पहले से डिसाइड कर लें कि हमको जैसे एमबीबीएस निकालना है। तो हमने आपको बताया 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लास की एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, ये 2 बुक अक्षरशः कंप्लीट करनी है। पूरा एक चीज उसका पढ़ना है और आपको आना चाहिए। अगर आपको ये 2 बुक अच्छे से आती है, फिर आप नीट के 10 साल के पेपर बाजार में मिल जाते हैं, वो 10 साल के पुराने पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लें, और इतना कर लेंगे आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अपने आप पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है अपने जीवन में। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है उसको कितना भी नॉलेज है तो भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। और इसमें जो सिलेक्शन है, जैसे जेई का सिलेक्शन है, तो जेई में 120 नंबर पे भी सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे और अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो आप सोचे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो 120 मतलब कितने, 30 क्वेश्चन सही करना है। 10 फिजिक्स के सही कर दिए, 10 केमिस्ट्री के और 10 मैथ्स के, तो भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएगा इंजीनियरिंग में। तो आपको जो भी करें, आप 50% कोर्स कंप्लीट करते हैं तो ऐसा करें कि उसका कोई भी क्वेश्चन न छूटे, सारे क्वेश्चन आपको बन जाए। फिर ये कौन पूछ रहा है? योगेंद्र, इस जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, यस इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, JNU दिल्ली है ना, सब ये टॉप पे चल रहे हैं अभी JNU दिल्ली।
Is there any disadvantage if I apply for NEET as a dropper? No. देखो, ड्रॉप जो बच्चे लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप 12th में हैं, उसी समय फुल तैयारी से एग्जाम दें. कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे इतने नंबर आए हैं पर इतने आ सकते थे और मैं कर सकता हूँ, तो ही ड्रॉप लो. कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अब हमने ड्रॉप ले लिया अब सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. जो 12th के बाद देते हैं उसमें मान लो 500 मार्क्स आए उनके, और ऐसा देखा गया है कि ड्रॉप लेने के बाद उनके 400 ही आए और कम हो गए. तो कोई ड्रॉप लेने से होगा ऐसा जरूरी नहीं है. वो आपको खुद एनालिसिस करना है कि आपने फुल तैयारी करी थी तो आपके 500 आए, अब थोड़ा और करते तो और अच्छे आते. तो आप ड्रॉप लेके दिन रात लगो और फिर तैयारी करो तो जरूर आपके अच्छे नंबर आएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे. पर आपने सोच लिया मैंने इस साल ड्रॉप ले लिया है, बस यही सोच लिया और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर पीछे भी हो जाए. क्योंकि जब आप कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं उस समय नॉलेज अच्छा रहता है. और सबसे पहले आप स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड टीचर्स और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के बाद सेलेक्ट हुए. और आप कोचिंग्स में जो टीचर्स हैं उनकी कोई चेक नहीं है. कोचिंग में जो एडमिशन टीचर पढ़ा रहे हैं उनका कोई वो नहीं है कि उनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है. बस दे आर पॉपुलर एंड दे आर टीचिंग. लेकिन गवर्नमेंट में स्कूलों में जो टीचर हैं वो बड़ी मेहनत करके सिलेक्ट हुए हैं और बहुत अच्छे टीचर्स हैं. आप उन पे अपना विश्वास रखें, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछें और अपने आप पे विश्वास रखें, तैयारी करें और उनके टच में रहें और उनसे पूछें, आप जरूर सिलेक्ट. अभी एक बच्चा ठीक है अभी घर पे. व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स वी नीड इन सिलेक्शन इन नीट? मेरी बात हो तो जाएगी. नीट में आपका 600 मार्क्स, 600 प्लस मार्क्स आ जाए 720 में से 600 प्लस आएंगे तो आपको जो कॉलेज चाहोगे वो मिल जाएगा गवर्नमेंट का. और फिर 550 के ऊपर है तो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे. उसके नीचे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है, फिर प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं. प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ज्यादा लगती है. मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 10 लाख फीस है 4-5 साल की, तो प्राइवेट में 60 लाख फीस है. ये फर्क है. चलो चलो. लेकिन अगर आप मेधावी स्कीम में निकल जाते हैं, 85% के ऊपर लाते हैं सीबीएसई में या 75% के ऊपर एमपी बोर्ड में, और मेधावी स्कीम में निकल जाते हैं, तो फिर पूरी फीस गवर्नमेंट भरती है. कोई सा भी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज, वो गवर्नमेंट भरती है, एमपी गवर्नमेंट. Can we secure a job in government medical college after getting a good rank? Yes. तो आपका डिग्री होने के बाद आपको मिल जाएगा जॉब. गवर्नमेंट कॉलेज में जो पोस्ट निकलती है मेडिकल कॉलेज में, वो अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसमें सिलेक्शन होता है. If you don't apply for NEET after 12th, just take drop next year. नहीं, ऐसा नहीं करना है. आप जब 12th पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम दो, उससे आपको पता पड़ेगा कि हम कितने मार्क्स ला रहे हैं, हम कितने पानी में हैं, और फिर आप डिसाइड करें कि हम ड्रॉप लेके और मेहनत करके निकाल सकते हैं. आप केवल ये सोचेंगे कि ड्रॉप लेना है तो फिर नहीं सिलेक्शन होना. आप कितनी मेहनत करेंगे उससे फायदा हो. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाल और किसी का क्वेश्चन रह गया क्या? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? I think I have replied all the questions, queries. Yes, madam. जी सर. और कोई बच्चा पूछना चाहता है कुछ क्वेश्चन? बच्चों, if you want to ask anything, please feel free to ask. सर ने जितनी बेसिक जानकारी दी है, तो आप चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो. ये कुणाल मालाकार ने डाला है, सर SCRA का एग्जाम 12th एग्जाम के बाद देते हैं. हाँ, जब आप 12th में रहेंगे उसी साल देना. तो जैसे ही 12th की एग्जाम हो जाएगी और उसके बाद जून जुलाई में इसकी एग्जाम होती है, पर फॉर्म पहले से भरना है. फॉर्म आपका जनवरी के आसपास भरना रहता है. आपकी 12th की एग्जाम मार्च में होगी और फिर SCRA की एग्जाम जून या जुलाई में होगी. तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे देख के इसकी डेट नोट करके रखो डायरी में कि इसका फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, उस समय आप फॉर्म भरो. ये सारे जो फॉर्म है वो पहले भरने पड़ते हैं. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप एक डायरी मेंटेन कर लेना 12th में है तो, क्योंकि बीच में आप बिल्कुल बिजी हो जाते हैं. कभी प्रैक्टिकल चल रहा है, कभी प्री बोर्ड चल रहा है, कभी ये, तो ध्यान नहीं जाता.
आप एक डायरी में लिख के रखो कि दिसंबर में हमको ये वाला फॉर्म भरना है, ये सर्च करके उसकी डेट नोट के रखो, इसका दिसंबर में निकलता है, इसके एग्जाम जून में, तो ऐसा तो उस समय आपको फॉर्म भरना है ध्यान से, क्योंकि उस समय आप पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, फिर बिल्कुल ध्यान नहीं आता, फॉर्म की डेट निकल जाती है, तो इसलिए नोट करके रखें। फिर है रिसर्च जैन, विच इज द बेस्ट फील्ड इन इंजीनियरिंग एज पर, देखो अपना इंटरेस्ट इसमें देखोगे, आजकल ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज है रोबोटिक्स में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, कंप्यूटर साइंस में है, आईटीज में है, क्योंकि सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही चल रहे हैं, चल रहा हो तो बताओ यार आपका तो इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। पर आप ऐसा नहीं सोचें, अगर आपका मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल लें, और बहुत अच्छी आप इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं नए नए, और उसमें भी बहुत बढ़िया, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें अपॉर्चुनिटीज तो हम डेवलप करते हैं, आप जो नई चीज करके देंगे मार्केट में वो चलेगी। इतना कैश करेंगे क्या? और करेंगे नहीं, चलना तो चाहिए, देखते हैं चलेगा तो कर Research देंगे। and आप कभी भी I देख know लेना, ऐसा that नहीं कि अभी interest चाहिए। vary from person to person. तो according to your interest and present scenario, तो अभी present scenario क्या है, कंप्यूटर, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मेडिकल इंजीनियरिंग, तो इनसे आप इनमें से चूज कर सकते हैं जिसमें आपको लगे। फिर भूमिका सर, विच इज द बेस्ट फील्ड इन एमबीए, देखो एमबीए में अगर आपको जाना है तो इंदौर में जो आईआईएम है उसमें 5 साल का कोर्स है, और उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है आईपीएम, उसके थ्रू एडमिशन देते हैं, तो वो भी बेस्ट है। आफ्टर 12th आप सीधे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आईआईएम इंदौर में कोर्स है, और एक और जगह गोवा में शायद खोला है, 2 जगह है, तो एक ये भी बढ़िया है, और वहाँ एडमिशन होने के बाद आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, तो एमबीए करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, कोई सा भी आप एमबीए करेंगे बेसिक चीजें सब, हाउ टू मैनेज मेनी थिंग्स, वो सब सिखाते हैं। जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, आईआईएम है, ये एम्स है, फिर आईआईटी है और आईआईएम है, ये सारे में जो पढ़ाई है वो ऐसे बुक वाली पढ़ाई नहीं है, जैसे आपको बुक मिल जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, वहाँ कोई बुक नहीं मिलती, वहाँ पे रोज आपको टास्क देते हैं कि आपको ये करना है और इसका हल ढूंढना है, और आपको पूरी थीसिस लिखनी है, दिस टाइम स्टडी इज देयर, और 24 घंटे आपकी वहाँ पढ़ाई रहती है, रात को 2 बजे भी क्लास लगती है, आपके दिमाग में जब आइडिया आया तब आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो, उसी समय क्लास लगा देंगे, रिकॉर्डिंग चालू है, वो बंद टाइम बाउंड नहीं होता है, बाद में देख लेना, रिकॉर्ड हो इस रहा तरह की वहाँ पे पढ़ाई है, ऐसे बुक बाउंड नहीं होती है, वहाँ पे आपको बुक ही नहीं मिलेगी, वहाँ की लाइब्रेरी में आप देखोगे तो जो बच्चों ने रिसर्च करी है वही बुक मिलेगी, ऐसे कोई फिक्स बुक नहीं मिलेगी। यही तो बता रहा है, यही तो मीटिंग चल रही वही वाली। और अरविंद, ये है मीटिंग कि क्या इतनी इम्पोर्टेंट है क्या उधर मतलब चले? पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना करने में? अच्छा, घर में खुश रहते हो अरविंद? जो वही वाला सर कंप्लीटेड गाँव का नाम बच्चे? क्या है? अक्षय ये किस- हाँ, ये तो सारी क्वेरी हो गई, इसमें जितने डाले बच्चों ने। जी। वहाँ रहते रहते बात करते क्लास रहते तो अटेंड नहीं किया हाँ, आपने? इसके अलावा भी बच्चों अगर आपने देखा हो तो सर की मेल आईडी, जैसे ही सर ने स्टार्ट किया था तो मेल आईडी वहाँ थी। बेटा देख सर इफ यू गिव परमिशन कैन Okay. यू शेयर मेल आईडी विद स्टूडेंट्स, हाँ, patelgs11@gmail.com, है ना, यू कैन आस्क, ठीक है, आप सर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बेटा खुश और रहा सर करो। डेफिनेटली आपके सवालों का बिल्कुल ऐसे ही जवाब देंगे जैसे उन्होंने अभी लाइव सेशन में दिया, वो लगातार आपसे कांटेक्ट में बने रहेंगे, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बहुत अच्छे सेशन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इनवाइट कर रही हूँ वाइस प्रिंसिपल मैम श्रीमती पुष्पा सिंह को वोट ऑफ थैंक्स के लिए। हाँ, okay, thank you Anshu ma'am. So really it was a very अरे ये नहीं है दादा, अभी beneficial and दूसरे very किस nice बारे में मीटिंग चल रही सर? virtual meeting. Our resource person, respected हाँ। GS Patel, HOD, Department of Physics, Sikka Senior Secondary School Indore, हाँ, ये सही बात है। Principal, JNV Indore, Shri O.P. Sharma sir, Coordinator of Vigyan Jyoti, Mrs. Anshu Singh, नहीं सर देख सकते JNV Indore, कुछ नहीं है। other staff of JNV Indore and dear students. Really, the program was too much सर ये too much देर से काम beneficial for all of you, and sir gave a lot of time. Means very detailed
program about all the fields of science, maths, and other fields also. ये जो इधर लगी है With the help of examples, the sir explained about the different courses and names of institutes, सर थोड़ा situation where the institutes are situated and चक्कर how खोल you can लगाएंगे get admission to those institutes. Everything was थोड़ा काम है explained यार by मेरा sir मोबाइल very बिजी nicely है and उनको beautifully पूछना है कुछ and very simply too. So we realized that our students, they are also taking too much interest. So thank you, a big thanks from all the staff and Vigyan Jyoti team of GNB Indore sir, Patel sir. Thank you very much. We hope that in future also you will be with us. A big thank to our principal sir, Shivopi Sharma sir, Vigyan Jyoti coordinator Madam Anshu Singh, our FCSA Vijay Patil ji, and students of Vigyan Jyoti. So thanks a lot of you. Good afternoon. Thank you. Thank you. Have a nice Thank day. you very much. Thank you very much, madam. सर हो क्यों नहीं रहा